हाय फ्रेंड्स, फूड एंड हेल्थ वीडियो सीरीज बाय आहार योग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स देखे थे, तो आज हम आयुर्वेदिक कुकिंग के बारे में जानेंगे। वी ऑल नो दैट वी आर व्हाट वी ईट। Ayurveda goes one step ahead of this. It says we are what we digest. What is the difference between these two statements? Let's see the concept of ARM to understand this better. The undigested, unabsorbed food particles accumulate in the gastrointestinal tract and other subtle sites in the body and turn into a toxic, sticky, foul-smelling substance called ARM. ARM is the root cause of many diseases. ARM can be detected as a thick coating on tongue. So, ARM formed when food is not properly digested and absorbed by the body. And why does it happen? Answer is weak digestion, impaired Agni. Concept of Agni in Ayurveda resembles digestive enzymes in modern science. So, balanced Agni in the body is the base of healthy life. Ayurveda describes the fundamentals of food cooking that ensure the best digestion of food and minimum ARM formation. Let's see some of the fundamentals of Ayurvedic cooking. Let's see first diet based on Tridosha. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, every person is a unique combination of Vata, Pitta and Kapha. I hope every one of you has conducted a dosha test. If not, please check the link of dosha test in last video description. Now let's imagine two of your friends or family members. Person 1 who eats in good quantity and is hungry at every meal. अगर आप उसको एक दिन लंच स्किप करने बोलते हैं ना, तो वो इरिटेट हो जाएगा। बेसिकली ये ऐसे लोग होते हैं जो हंगर कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकते। अब देखते हैं पर्सन नंबर 2 जो इजीली ब्रेकफास्ट या लंच स्किप कर पाते हैं और उनका डाइट भी मॉडरेट क्वांटिटी में रहता है, फिर भी वो फिजिकली स्ट्रांग दिखते हैं। इन दोनों पर्सनालिटी के पीछे लॉजिक यही है कि दोनों की प्रकृति अलग है। फर्स्ट पर्सन इज पित्त प्रकृति पर्सन एंड सेकंड इज कफ प्रकृति पर्सन। प्रकृति के अनुसार सबकी फूड रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। So based on dosha balance in the body, specific diets are recommended in Ayurveda. Example, ideal diet for Vata person is hot and nourishing foods with good amount of ghee or oils. Ideal diet for Pitta person is foods having cooling properties. Ideal diet for Kapha person is light and dry foods. Second is use of spices. आयुर्वेद बताता है कि हर एक स्पाइसेस की मेडिसिनल वैल्यू अलग अलग होती है। कुकिंग स्पाइसेस डाइजेशन में हेल्प करते हैं और आम प्रोडक्शन को रोकते हैं। अगर हम स्पाइसेस को अपनी प्रकृति के हिसाब से यूज करते हैं तो शरीर में बढ़े हुए दोष को कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ब्लैक पेपर स्टिमुलेट्स पित्ता एंड पेसिफाई वात एंड कफ। Coconut stimulates kapha and pacify vata and pitta. Third is six taste. आयुर्वेद में अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में लिखा है, रसस्वाद आम्ल लवण तिक्तोष्ण कायकः षड्द्रव्यम अश्चितास्ते च यथापूर्व बलावः। यानी कि स्वीट, सार, सॉल्टी, बिटर, पंजेंट, astringent are the 6 tastes mentioned in Ayurveda. Each taste has different energy and effect on particular dosha. Example, sweet taste calm the vata and pitta, but it increases kapha. Sour taste decreases vata but increases pitta and kapha. Downward arrows have calming effect on the particular dosha, while upward arrow aggravate the particular dosha. Number 4 is food combinations और संयोग। दोस्तों, जब फूड प्रिपरेशन में 2 और 2 से अधिक फूड इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स किया जाता है, उसे आयुर्वेद में संयोग कहा जाता है।
कभी कभी दो विरुद्ध गुणधर्म वाले पदार्थ गलती से हम खा लेते हैं तो उसका विपरीत परिणाम हमारे शरीर पर होता है। एग्जाम्पल, मिल्क एंड फ्रूट्स, हनी एंड घी, egg and milk, fruits with any other foods. It is recommended to eat fruits alone, not with any other foods. फूड इंग्रेडिएंट्स का संयोग अगर गलत होता है तो फूड डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है और शरीर में आम या टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं। फिफ्थ इज करण। करण यानी कि संस्कार। During food preparation, the processing we do on food is called as sanskar on food. Example, grinding, soaking, roasting, steaming, sauteing, etc. Sanskar on food changes its qualities. Example, roasting of food makes food easy to digest and it is more suitable for Vata person. Deep frying is not recommended in Ayurveda. Number 6 is Rashi. राशि यानी कि प्रमाण। कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में खाना है इसका भी वर्णन आयुर्वेद में किया है। आयुर्वेद में बताया है कि स्वीट टेस्ट आहार में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर स्वीट टेस्ट का मतलब है, दोस्तों ध्यान से सुनिए, हाँ, यहाँ पर स्वीट टेस्ट का मतलब है ग्रेन्स, डेट्स, मिल्क एंड नेचुरल शुगर्स। वैसे ही सॉर एंड पंजेंट टेस्ट आहार में कम प्रमाण में होनी चाहिए, यानी कि ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रोज के आहार में भरपूर मात्रा में होने चाहिए और अचार, नमक इसका प्रमाण आहार में बहुत कम होना चाहिए। नंबर 7 देश। यहाँ पर देश का मतलब है स्थान और लोकेशन। The quality of food is depend on where it is grown. Example, रेगिस्तान या ड्राई एनवायरनमेंट में तैयार होने वाले फूड क्रॉप्स हल्के रहते हैं और वो कफ प्रकृति के लिए अच्छे होते हैं। आयुर्वेद सजेस्ट locally grown foods are always best for your health. Number 7 is काल। काल यानी कि ऋतु अनुसार फूड सिलेक्शन काफी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि समर सीजन में शीतवीर्य यानी कि कूलिंग फूड और लिक्विड फूड प्रोडक्ट्स आहार में होने चाहिए। रेनी सीजन इज ऑपोजिट ऑफ दिस। रेनी सीजन में हल्का, स्निग्ध और उष्ण आहार लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने देखे आयुर्वेद में लिखे हुए कुकिंग फंडामेंटल्स। फूड एंड हेल्थ वीडियो सीरीज का ये आखिरी वीडियो था। आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने की वजह यही है दोस्तों कि आप अपने डे टू डे कुकिंग में इसे अप्लाई करें और अपनी हेल्थ को परफेक्टली बैलेंस रखें। These cooking fundamentals are applicable all over the world because Ayurvedic cooking doesn't describe the recipes for food preparation. Rather, it has mentioned the fundamentals that can apply food preparation anywhere in the world. We have special gift for you in the next video. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज 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 शेयर विथ योर लव्ड वंस, क्योंकि हेल्दी लाइफ पर सबका हक है। सो टेक केयर, बाय बाय, बी हेल्दी, बी हैप्पी विथ आहार योग।